Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you guys are all well. In this video, I'll be solving this A-level maths paper 1 that we recently had at one of the schools where I teach. This is paper 1, but it excludes functions and integrations because it's an A1 class and they have not covered these two topics yet. But those of you who still have your exams going on, you'll find this helpful. Because it does have some tricky questions and we'll try to solve all of them in the next hour or so, inshallah. So let's begin with this. So the easier questions, थोड़े से आसान questions हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि हम थोड़ा सा जल्दी कर लें. We don't spend a lot of time on that, but then the relatively more difficult questions, we will take a bit more time on that. Okay, so let's start with this. So in the first question, we have to solve this equation. It's a disguised quadratic equation, right? Powers देखें, they are in the ratio 2:1. 6:3 ratio है, that means 2:1. तो इसको हम substitution से कर सकते हैं. We can use this substitution. जो भी छोटी power है, we can substitute that with another variable, right? So we can say let u equals x cube, and it becomes 8u squared plus 215u minus 27. ये एक quadratic equation बन गई. Now you can solve this quadratic equation. Do not write down the answers directly. What you at least have to do is put values in the quadratic formula. अगर आप factorize कर सकते हैं इसको factorize कर लें. Otherwise at least quadratic formula के अंदर इसकी values input करके देखें. तो आपके पास क्या आता है 215 whole square minus 4 into 8 into minus 227 square root divided by 2 times 8. आपको at least ये step show करना है. उसके बाद आप answers लिख सकते हैं. Directly from your calculator. So let's see how we can do this on our calculator. We go to this equation function, polynomial degree 2. इसमें वो equation input कर दें. 8 is the first coefficient, then 215 is the second coefficient, and then minus 27. Let's see what we get from this. One solution is 1/8, so u equals 1/8, and the other solution is u equals minus 27. ये दो solutions आ रहे हैं हमारे पास. अब हम x के लिए solve कर रहे थे, u के लिए तो नहीं solve कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, वो substitution वापस input कर देंगे. So it becomes x cube equals 1/8, right? u was equal to x cube, तो वापस हम वो input कर देते हैं. Or x cube equals minus 27. Now we take cube root on both sides. The first one gives us 1/2 and the second one gives us minus 3. These are the two possible answers that we have for this equation. And that's it. That's our final answer. Okay, that's question number 1. Let's move on to the next one. We have to express this in the form a into x plus b whole square plus c, where a and b are integers and c is to be given in terms of the constant b. Okay, इसका square complete करना है. Square कैसे complete करते हैं? There are multiple ways of doing that. आप minus b over 2 वाला method भी use कर सकते हैं if you want, या आप normal तरीके से square complete कर लें. इसमें आप 4 पहले common लेते हैं. You can do any method. So I often teach my class this method, in which what we do is we have this expression and we remember the standard completed square form, which is a into x minus h whole square plus k. That's the standard completed square form. h इसमें से कैसे आ सकता है? minus b over 2a. और k कैसे आ सकता है जब हम वो वैल्यू इसके अंदर वापस इनपुट करते हैं. So basically we find the turning point. Remember, in this standard form, h, k are the coordinates of the turning point. तो turning point निकालने के लिए we use this method minus b over 2a. a क्या है इसके अंदर 4, b is minus 24 and c is p. इसके अंदर इनपुट कर देते हैं. h की वैल्यू क्या आती है? minus into minus 24 divided by 2 times 4, and that is giving me 24 divided by 8, which is 3. h3 आ गया. अब k कैसे आएगा इसके अंदर? वो वापस इनपुट कर दें. मैं वैल्यू x की जगह पे 3 इनपुट कर दें. That will be k. So k equals 4 into 3 squared minus 24 times 3 plus p. k की वैल्यू हमारे पास क्या आती है यहाँ से? Let's evaluate this. 4 times 9, which is 36, minus 24 times 3, that's minus 36. We get p minus 36. ये k आ गया. ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, which is a into x minus h whole square plus k, ये वैल्यूज इनपुट कर दें. a is 4, h is 3 and k is
p minus 36. बस ये input कर दें and that will be your completed square form. A is 4, x minus h, that means x minus 3 whole squared plus k की जगह पे आपके पास क्या है p minus 36. So that's your completed square form ये आपको चाहिए था. ठीक है, आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं. 4 कॉमन लेते हैं जिसमें फिर x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. दैट्स आल्सो पॉसिबल. बट दिस इज़ ऑफन अ क्विकर वे ऑफ डूइंग दिस. इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, केयरलेस एरर्स के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. बट यू कैन यूज़ एनी ऑफ द टू मेथड्स दैट यू प्रेफर. दैट्स व्हाट वी गेट इन द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में वो कहता है hence or otherwise find the set of values of p for which this equation has no real roots. ओके, क्या इक्वेशन है? 4x स्क्वायर्ड माइनस 24x प्लस p. अच्छा, इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है, अगर नो रियल रूट्स हैं तो या तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर दें. दैट्स वन पॉसिबिलिटी एंड दैट्स परफेक्टली ओके. यू कैन डू दैट. सो यू कैन जस्ट से b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? माइनस 24 होल स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 4 टाइम्स p, दैट इज लेस देन 0 एंड दैट गिव्स यू 24 squared, that is 576. 576 minus 16p is less than 0. You can say 576 is less than 16p and then this divided by 16, that is 36. So 36 is less than p and that's p greater than 36. This is one possible way of doing this. Or another way could be कि आप इस एक्सप्रेशन को देखें. It's a U-shaped curve. It's going to look like this. ये shape है. इसका turning point आपको पता चल गया कि क्या है. Turning point is this. This has coordinates 3 and p minus 36, right? p minus 36 is the y coordinate. अब अगर इस equation का कोई solution नहीं है तो right side पे क्या है? 0 है. Right? 0 कौन सी line है? y equals 0 कौन सी line है? It's the x-axis. तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ लाइन नहीं, ये कर्व एक्स एक्सिस को नहीं क्रॉस करती, इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 से ऊपर होना चाहिए, राइट? ये वाई इक्वल 0 लाइन है. अगर ये कर्व और एक्स एक्सिस नहीं इंटरसेक्ट करते उसका क्या मतलब होगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? ताकि वो कर्व उससे ऊपर है. So you can say p minus 36 is greater than 0 and you could get directly p greater than 36 from that as well. That could be another way of thinking about this. Okay, that's part B of this. Question number 3. The circumference around the trunk of a large tree is measured and found to be 5 meters. After 1 year, the circumference is measured again and found to be 5.02 meters. Given that the circumference at yearly intervals form an arithmetic progression. So we have an AP. Find the circumference 20 years after the first measurement. Okay, now be careful about the number of terms that you'll be considering because they can time कब से आप start करें. बिल्कुल initial जो value है 5 meter है. After 1 year, the circumference is measured again and it's found to be 5.02 meters. So initial value 5 है, second value क्या है? 5.02. Now this is the value after 1 year. आफ्टर 2 years क्या वैल्यू हो जाएगी? 5.04. हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है द सर्कमफेरेंस 20 years आफ्टर द फर्स्ट मेजरमेंट. तो बेसिकली 20 years के बाद ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही होगी? दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. नाउ what's the number of terms until we have this 20 here? What's the number of terms? ये 20th term नहीं होगी. It's actually going to be 21st term. Why? Because we are starting from 0, right? 20 तो ये terms हो जाएंगी और फिर एक आपके पास वो initial term है क्योंकि 5 से start कर रहे थे. वो एक तरह से जब 0 years पास हुए तब से वो term start हो रही है, 5 से start हो रही है. तो असल में जो ये number आपने find करना है, this is the 21st term of the sequence. So now we have an arithmetic progression. हम यहाँ पे लिख लेते हैं. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 5. a is 5. What about the difference? Difference is 0.02. 5.02 minus 5, that is 0.02. डिफरेंस है हमारे पास. And what is it that we're looking for? We're looking for the 21st term of the sequence. Formula क्या होता है? a plus n minus 1 times d. a is 5 plus n minus 1, that means 21 minus 1 times the difference, which is 0.02, and that should give you the result. You can see what that is. 5 plus 20
times 0.02, and that's giving me 5.4. This is what the value will be after 20 years. Okay. Given instead that the circumferences at yearly intervals form a geometric progression, find the circumference 20 years after the first measurement. Okay. पहले arithmetic progression थी, अब इसमें change क्या हुआ है? The only thing that has changed is that now it's a geometric progression. Everything else is exactly the same. आपको circumference ही find करना है और कोई sum की भी बात नहीं हो रही. Yes, it's again fairly straightforward. We've got the same thing again. We know the first two terms. First term 5 है अभी भी, second term अभी भी 5.02 है, but instead of being an arithmetic progression now, it's a geometric progression. That's the difference, right? Arithmetic नहीं, अभी geometric बन गया है. इसका मतलब है सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें देखते हैं 20 ईयर्स के बाद क्या होता है. नाउ रिमेंबर इट्स अ जीपी. जीपी में कौन से वेरिएबल्स आपको चाहिए होते हैं? फर्स्ट टर्म इज 5. What about the ratio? Ratio will be 5.02 divided by 5, right? Next term divided by previous term, that will give you the ratio 5.02 divided by 5, and that's giving me 1.004. Okay, that's the ratio that we're getting. Again, we're looking for the 21st term, right? The same logic as before. 0 से start करें 20 तक जा रहे हैं, तो 20 कौन सी term होगी? It will be 21st term. Okay, now what's the nth term formula for a GP? It's AR raised to power n minus 1. A is 5, R is 1.004 raised to power 21 minus 1. You can see what that turns out to be. 5 into 1.004 raised to power 20. And that gives us as our final result 5.4155. To three significant figures, that will be 5.42. So that's what you write down as your final answer. Okay? That was part B of this question. Let's move on. Question number 4. You have points A and B. They lie in a circle with center minus 2, 5. The line AB has the equation y equals minus 2x plus 26. Find the coordinates of B. Okay, so we have a circle. Circle वाले questions के अंदर अगर उसने diagram नहीं दी हो, it's always a good idea to sketch a circle yourself. It will help you think better. थोड़ा सा आसान हो जाएगा सोचना है इसके लिए. ये आपके पास circle है, इसका center जो है that is minus 2, 5. Let's mark that center. Point A is 7, 12. अच्छा, अब जब आप points mark कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आप सोच लें कि किस साइड पे होना चाहिए पॉइंट ए जो है वो सर्कल के ऊपर लाया करता है. एक्स कोऑर्डिनेट 7 यानी कि -2 से बड़ा है तो राइट साइड पे होगा. वाई कोऑर्डिनेट 12 वो भी 5 से बड़ा है तो ऊपर होगा. सो ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर के राइट और अप होगा. सो इट माइट बी समवेयर हियर. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए. ये पॉइंट हमने ए मार्क कर लिया. अब उसने कहा है एक लाइन ए बी है, उसकी ये इक्वेशन है. इज इट अ पॉजिटिव ग्रेडियंट लाइन और नेगेटिव ग्रेडियंट लाइन? नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन है, राइट? तो it might look something like this, right? तो यहाँ पे हम कहीं पे B mark कर लेते हैं. We don't know exactly where it's going to be, but let's just mark this point B here. ठीक है, roughly हमने इस तरह से एक point B mark कर लिया यहाँ पे. Now what we need to do is we need to find the coordinates of this point B somehow. ये B find करना है. ठीक है, अब B के coordinates कैसे आ सकते हैं? उसने आपको AB line की equation दी हुई है. Okay, line AB की equation दी हुई है और आपको उसको यूज़ करके किसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. नाउ व्हाट्स पॉइंट बी? पॉइंट बी इज बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड द सर्कल. सर्कल और लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो पॉइंट ए है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है. दूसरा पॉइंट वो बी है, वो हमें फिगर आउट करना है. वन आइडिया कुड बी कि हम इसको यूज़ कर लें कि अच्छा सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं. हाउ डू यू राइट डाउन द सर्कल्स इक्वेशन? आपको क्या चाहिए होता है उसके लिए? आपको सेंटर चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है. सेंटर यू ऑलरेडी हैव. व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस आप फाइंड कर सकते हैं बिकॉज आपको सेंटर भी पता है और आपको पॉइंट ए भी पता है. अगर आप वो डिस्टेंस निकाल लें, लेट्स कॉल द सेंटर पॉइंट सी, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज गोइंग टू बी सी ए. लेट्स फाइंड आउट दिस लेंथ. ये क्या आती है? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं. दे आर 7 and 12.
it should be 7 plus 2 whole squared plus 12 minus 5 whole squared, and then square root of that whole thing. That should give us the radius. Let's see what that is. 9 squared is 81 and 7 squared is 49. Square root of that, we have square root of 130. ये आपका रेडियस आ गया. नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट. इस फॉर्म की होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर. वी हैव द सेंटर, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस माइनस टू दैट बिकम्स x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y minus 5 whole squared equals radius का square, that will be 130. That is the equation of the circle that we have. Okay, ये एक equation आ गई. अब हमें लाइन की इक्वेशन पता है. लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है y equals minus 2x plus 26. Point B is the point of intersection of the line and the circle. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी दो फंक्शंस के, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अब इसको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना लेते हैं. वो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे इनपुट कर दें और देखें उससे हमें क्या मिलता है. वी गेट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे आप इनपुट कर दें माइनस 26 प्लस 26 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स 130. लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड दिस गिव्स अस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस, लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, इट्स माइनस 2x प्लस 21 होल स्क्वायर equals 130, and that simplifies to x squared plus 4x plus 4 minus 2x का whole squared, that will be plus 4x squared. 2 into minus 2x into 21, that should be minus 42 and 84, minus 84x plus 21 squared. 21 squared, that is 441, and let's bring minus 130 from the other side as well. This is what we get. Let's simplify this further. X squared plus 4x squared, that is 5x squared. X terms कौन सी हमारे पास, 4x minus 84x minus 80x हो गया ये, और फिर constants को add कर लेते हैं. They give us 4 plus 441 minus 130, and that is 315. We can simplify this equation by dividing the whole thing by 5. उससे हमें क्या मिलेगा, x squared minus 16x plus 315 divided by 5 is 63. This is the equation that we end up getting. इसको फैक्टराइज करना चाहें फैक्टराइज कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इनपुट करके आप डायरेक्ट आंसर्स लिख दें. लेट मी सी इफ वी कैन फैक्टराइज दिस. 63 आपके पास कैसे आ सकता है, ऐड करके 11 and 5, 9 and 7. 9 and 7 works, right? 7, 9, yeah. 7 and 9 works. So we can, if you want to factorize this should be x square minus 9x minus 7x plus 63 equal 0. We get two factors from that, x minus 7 and x minus 9. One x coordinate turns out to be 7 and the other is 9. अब हमें ऑलरेडी पता है कि a का x coordinate 7 है, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, ये तो a है. b फाइंड करना है, तो ये x वैल्यू जाके दूसरी इक्वेशन में इनपुट कर दें. you'll get the corresponding y coordinate from that. y equals minus 2 into 9 plus 26, and that is going to give you 8. ये आपका y coordinate आ गया. So point b therefore is 9, 8. ये point b के coordinates हो जाएंगे 9 and 8, and that's what we were looking for. That's question number 4 from this paper. Let's move on. Question number 5. The first, second, and third terms of a GP are sine theta, cos theta, and 2 minus sine theta respectively. Find the value of theta. Now again, it's a sequences question, but it's in combination with trigonometry. Theta is in radians and it's an acute angle. That's an important thing to keep in mind. It's an acute angle और radians के अंदर है. It's a GP. अब GP में हमारे पास 3 consecutive terms है, right? One is sine theta, another is, the second one is cos theta, and the third one is 2 minus sine theta. Now we know कि ratio सब में constant होती है. GP में जितनी भी terms होती हैं, तो इसमें हमें पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं.
if we had to find the ratio, we could say second term divided by the first term, that will give us the ratio, cos theta over sine theta, or 2 minus sine theta over cos theta, that means third term divided by the second term, वो भी आपको रेशियो दे सकता है. तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है. This is an equation that we can use directly, right? So what we're doing is we're saying T2 over T1 should equal T3 over T2. That's an equation that we've got. इसको solve कर लें और इससे हम theta की value figure out कर लेते हैं. ठीक है, इससे आगे it's just trigonometry. Let's cross multiply, so just focus on this part. It becomes cos square theta. On the right side we get 2 sine theta minus sine square theta. Let's bring all terms to one side. It will be cos square theta plus sine square theta equal to 2 sine theta. In fact, let's just keep 2 sine theta there, because cos square theta plus sine square theta, we can say that is 1. So we have 1 equal to 2 sine theta, and sine theta equals 1 over 2. And now we can take sine inverse. We know it's an acute angle, right? So हमें basic angle वगैरह find करने की जरूरत नहीं है. We know कि first quadrant ही है, तो बस आप को यहीं पे एंगल चाहिए, तो आप डायरेक्टली साइन इनवर्स कर लें. you'll get sin inverse of 1 over 2, and you can see what that is. In the first quadrant, 1 over 2 कब आएगा, pi over 6 के ऊपर. That will be the value of theta. You can put this on a calculator to verify. Sin inverse of 1 over 2, that's pi over 6, right? That's the value of theta that we were looking for. That's our final answer. अगर उसने हमें कहा होता है कि एक्यूट नहीं है और कोई इंटरवल दिया होता तो हम बेसिक एंगल निकालते और बाकी क्वाड्रेंट्स के अंदर भी पॉसिबल एंगल्स चेक करते. बट यहाँ पे उसने कहा था एक्यूट एंगल. एक्यूट का मतलब है इट हैज़ टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाहर तो नहीं जा सकता. तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया, बाकी सब कुछ इग्नोर किया. Okay, let's move on. Now it says using this value of theta, that means pi over 6. Find the sum of the first 10 terms of this progression, giving the answer in the form in this form where B and C are integers to be found. Okay, sum find करना है. हमें theta की value पता चल गई है. We know the first 3 terms of the sequence as well, but we do not really need all of them. Sum का formula क्या होता है? It's GP, right? GP का sum formula में आपको क्या चाहिए? First term चाहिए और ratio चाहिए. What's the first term? The first term is sine theta. एक तो हमें ये चाहिए फर्स्ट टर्म, और दूसरा रेशियो चाहिए. रेशियो क्या हो जाएगी, cos थीटा ओवर sin थीटा. दूसरी चीज हमें ये चाहिए, ये यूज कर लेते हैं. R equals cos theta over sin theta. Now we know that the value of theta is pi over 6. We have found that in the first part. We can just input that here. Sin pi over 6, that is going to give us 1 over 2. A is 1 over 2. What about the ratio? Cos pi over 2 divided by sin pi over 2. Now you should first show what these evaluate to. Do not write down the answer directly. Cos pi over 2 पहले evaluate करें, देखें वो क्या आता है. 0 है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं. No, that's a problem. Pi over 6, or yeah, so it should have been pi over 6. Okay, this is pi over 6, right? Cos pi over 6 आप कैलकुलेटर में डालें, it should give you under root 3 over 2. Let's just check that quickly. Under root 3 over 2, right? That's what you have in the numerator. In the denominator, you've got sin pi over 6. That's 1 over 2. 2 and 2 will get cancelled, and you're left with under root 3. So R is equal to square root of 3. ये आपके पास GP की first term और ratio आ गई. अब आप GP का formula लगाएं sum का. Sum to n terms of the GP, that is A over A into 1 minus R raised to power n divided by 1 minus R. Let's just input values in this. A is 1 over 2. So we've got 1 over 2 here, multiplied by 1 minus under root 3 raised to power n. कितनी terms का sum निकालना है हमें? 10 terms का sum निकालना है. So we are looking for S10 essentially. यहाँ पे हम power में 10 डाल देते हैं. Divided by 1 minus R, which is square root of 3. Okay, this is what we have. Now let's simplify this and see what that gives us. We need an answer in exact form, right? Exact चाहिए, decimals में नहीं convert करना. बाहर 1 over 2 है, let's keep it as it is. अंदर हमारे पास क्या आता है? Under root 3 raised to power 10, that will be 3 raised to power 5 essentially. आप बेशक डायरेक्टली करना चाहते हैं तो under root 3 whole raised to power 10. You can see what that turns out to be. That's 243. So in the numerator you've got 1 minus 243. In the denominator you've got 1 minus square root of 3. And that gives us 1 minus 243, which is minus 242. That will
divide by 2, right? And we have minus 121 divided by 1 minus square root of 3. Okay, that's the sum that we were looking for. लेकिन उसने एक specific form में कहा हुआ है कि आपको आंसर देना है. And what is that form? B over square root of c minus 1. इस form में आपको देना है. Now it's kind of similar, लेकिन हमारे पास 1 माइनस समथिंग आ रहा है, उसके पास समथिंग माइनस 1 था, तो हमें डिनोमिनेटर के टर्म्स को बेसिकली इंटरचेंज करना है. नाउ वन वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि अभी जो माइनस है ना, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दें, टर्म्स आपकी स्विच हो जाएंगी. और इफ़ यू फाइंड दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड, आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -1. उससे क्या होगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट बिकम्स 121. डिनोमिनेटर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम -1 प्लस √3, और यू कैन से दैट्स √3 - 1, एंड दैट इज द सम ऑफ दोज 10 टर्म्स दैट यू वर लुकिंग फॉर. ठीक है, अब b की वैल्यू क्या हो गई? b की वैल्यू होगी 121, और c क्या हो गया? c इज 3. ठीक है, ये आपको सम चाहिए था. Yeah, that's it. That's the sum that you were looking for. Let's move on. Question number 6. Expand the following in ascending powers of x up to and including the term in x squared. Now, it's the formula is written in the formula sheet. It looks like this: a plus b whole raised to power n, a power n plus nc1 a raised to power n minus 1 times b. Formula sheet में nc1 की जगह पे इस तरह लिखा होता है n1. You should know कि वो nc1 ही है. Then you have nc2 a raised to power n minus 2b squared plus nc3 into a raised to power n minus 3b cube, and so on all the way up to b raised to power n. That's the formula that we will be using here. इसको expand करते हैं x square तक. Let's see what that turns out to be. A is 1, right? So 1 raised to power 5 plus 5c1 into 1 raised to power 4 into b, which is 2x, plus 5c2 into 1 raised to power 3 into 2x whole squared. Square तक आ गया हमारे पास. We can stop at this point. 1 plus 5c1. 5c1 is just 5. 5 into 2x plus 5c2 is 10. 2x का whole square, that is 4x squared. And let's simplify that further. That gives us 1 plus 10x plus 40x squared. That's the expansion that we were looking for. Now it says in part B, find 1 minus ax whole raised to power 6, where a is a constant. Let's do this expansion as well. ये क्या हो जाएगी? First term 1 है. So a is 1, right? So 1 raised to power 6 plus 6c1. x squared तक करना है ये भी. 6c1 into 1 raised to power 5 into minus ax. Right? This whole thing is b. Plus 6c2 into 1 raised to power 4 into minus ax whole squared. And that's it. आपको x squared तक expand करना है. You can stop at this point. 1 plus 6c1. 6c1 is 6 times minus ax plus 6c2. 6c2 is 15. So 15 into a squared x squared. आप calculator से evaluate करेंगे. 6c2 evaluate करें. Your calculator should give you 15 for this. Okay, and then you simplify this further, and that gives you 1 minus 6ax plus 15a squared x squared. And that's the expansion that we were looking for in the second part. अच्छा, अब वो कहते हैं in the expansion of this product, find the coefficient of x square is given to be -5. Find the possible values of a. अच्छा, ये product क्या है? ये उन्हीं दो expressions का product है जो उसने पहले part में हमसे expand करवाई हैं. तो essentially हमें क्या करना है? 1 plus 10x plus 40x squared. क्योंकि आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए ना, राइट? तो हमें x स्क्वायर से आगे की एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम वही एक्सपेंशन जो हमने फर्स्ट पार्ट में की है बस वही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो x स्क्वायर तक एक्सपेंडेड है. और इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं. अच्छा, अब ये या तो हम पूरी मल्टीप्लिकेशन कर लें, राइट? या तो हम ये पूरी मल्टीप्लिकेशन कर लें, 9 टर्म्स आ जाएंगी, या फिर हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स पर फोकस करें जिनसे हमें x स्क्वायर मिलेगा, राइट? बिकॉज हमें x स्क्वायर चाहिए इवेंचुअली. हम सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशंस करते हैं जिनसे एक्स स्क्वायर आते हैं और बाकी सब कुछ इग्नोर कर देते हैं. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा. 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा, राइट? तो 1 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन सिमिलरली 10x को किससे मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा. 10x को -6 से x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर 40x स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आएगा. तो बस ये 3 मल्टीप्लिकेशंस करते हैं एंड वी जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एल्स. 1 into 15a square x square. What do we get from that?
15a squared x squared. 10x into this, that is going to be minus 60 ax squared, and then 40x squared into 1, that is just 40x squared. ठीक है. Now let's take x square common, so we know कि इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास 15a squared minus 60a plus 40 times x squared. This whole thing is the coefficient of x squared. ये उसने हमें क्वेश्चन में बताया कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए. तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वी से दिस शुड इक्वल -5. 15a squared minus 60a plus 40, this should equal -5. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, we'll get the possible values of a. 15a squared minus 60a plus 45 equal to 0. We can simplify this whole thing by dividing by 5. 3a squared minus 12a plus 9 equal to 0. In fact, we could divide by 15 to make it even simpler. That would give us a squared minus 4a plus 3 equal to 0. Now you can either use quadratic formula but show working for that, or you can factorize. इसको factorize करते हैं तो हमें मिलता है a squared minus 3a minus a plus 3 equal to 0. We get two factors from that, a minus 3 and a minus 1, that equals 0. A equals 3 or a equals 1. These are the two possible values of a that we get from this. ओके, ये आपको चाहिए था. उसने कहा वे दो वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, इसका मतलब मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, तो ये दोनों आपके पॉसिबल आंसर्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 7. 5 cos theta minus sin theta into tan theta plus 1 equal to 0. It's a quadratic equation. Show that it can be expressed in the form this, where a, b and c are constants to be found. अच्छा, क्या डिफरेंस है जो उसने फॉर्म दी हुई है और जो उसने शो करने के लिए कहा हुआ है? द डिफरेंस इज कि इसमें सिर्फ कॉज आ रहे हैं, तो आपने कॉज वहाँ आपने साइन और टैन वहाँ से एलिमिनेट करना है, सिर्फ कॉज के टर्म्स में करना है जो भी है. अच्छा, लेट्स एलिमिनेट साइन टैन एंड साइन फ्रॉम दिस इक्वेशन. 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा इनटू टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. टैन की जगह पे पहले हम क्या करते हैं, साइन ओवर कॉस लिख देते हैं, राइट, ताकि टैन तो खत्म हो जाए. सो वी हैव साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हियर. ओके, नाउ लेट्स गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन फर्स्ट. हमके फाइनल रिजल्ट में हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, so we have plus cos theta equal to 0. अच्छा, अब साइन स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 minus cos square लिख देते हैं. So it becomes 5 cos square theta minus 1 minus cos square theta plus cos theta equal to 0. Make sure that you're using this bracket properly, otherwise आपके plus minus के errors हो रहे होंगे. Now we could simplify this. 5 cos square theta minus minus, that becomes plus cos square theta. That's going to give you 6 cos square theta plus cos theta from here. And then this minus 1. This is the equation that we end up getting. ठीक है, ये आपको चाहिए था फर्स्ट पार्ट में. अब वो कहते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन, तो वही इक्वेशन जो उसने फर्स्ट पार्ट में दी हुई थी, वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दैट टू दिस फॉर्म. ये सॉल्व करनी है फॉर थीटा बिटवीन 0 and 2 pi. Okay, now let's solve that equation. We can use a substitution here to make things simpler. We can say let c equals cos theta, or you can use any other letter. It does not really matter. This equation therefore can be written as 6c squared plus c minus 1 equal to 0. Again, it's a quadratic equation. You can see if you can factorize. In this case, again, you can factorize if you want. Otherwise, quadratic formula भी use कर सकते हैं. Then the two factors that we're going to get are 3c minus 1 and 2c plus 1. Right, so we have either c equal to 1 over 3 or c equal to minus 1 over 2. That means either cos theta is equal to 1 over 3 or cos theta is equal to minus 1 over 2. ये हमारे पास दो possible solutions आ रहे हैं इसके. ठीक है, ओके. अब क्या करें, अब हमें थीटा के वैल्यूज फिगर आउट करनी है. सो फॉर दैट वी गोइंग टू फाइंड द बेसिक एंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. फर्स्ट केस में देखते हैं बेसिक एंगल क्या आता है. वी से cos alpha equals 1 over 3 and we'll get the value of alpha from here. Similarly here we say cos alpha equals 1 over 2 and we'll get a value of alpha for the second case as well.
Now we do not need exact answers. In fact हम यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए तो एटलीस्ट लेकर आ भी नहीं सकते exact answers. तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है. बेसिक एंगल क्या आता है फर्स्ट केस के अंदर? cos inverse of 1/3. That is giving me, make sure that your calculator is in radian mode. Mine is in radian mode, so I'm just using it directly. 1.231. Minimum 4 significant figures in your working, अदरवाइज आपके फाइनल आंसर सही नहीं आएंगे. अच्छा ये हो गया, बेसिक एंगल आ गया. अब कॉस इस केस में क्या था? पॉजिटिव था, राइट. कॉस पॉजिटिव किन क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है? इट कुड बी इन द फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स, राइट. Just give me a second. अच्छा अब कौन से क्वाड्रेंट्स हमें देखने हैं फर्स्ट केस के अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. ए एस टी सी, सो ए और सी देखना है हमें, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा. सो वन बेसिक एंगल could be here or it could be here. What are the possible values of theta that we get? In the first quadrant we have 1.23, right. 3 significant figures पे आपका आंसर होगा. और फोर्थ में क्या हो जाएगा? It will be 2 pi minus 1.231. That will be another possible value of theta that we get. You can see what that is. 2 pi minus 1.231. And that's 5.05. ओके उसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि आपको 0.2 पाई के अंदर चाहिए वैल्यूज. तो ये 2 पॉसिबल आंसर्स आ गए आपके. अब फिर आपके पास एक और बेसिक एंगल आ रहा है विच इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम cos alpha equals 1/2. यहाँ से बेसिक एंगल आपके पास √3 सॉरी यहाँ से क्या आएगा? pi/3 आएगा आई थिंक. या cos inverse of 1/2. Let's just verify that as well. pi/3. या बेसिक एंगल आपके पास आ जाएगा pi/3. दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी. अब इसमें आप देख लें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. इसके सेकंड केस के अंदर यू सी योर कॉज इज नेगेटिव, राइट. क्योंकि ये नेगेटिव है इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट्स हैं? या तो सेकंड क्वाड्रेंट है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है. अब क्या पॉसिबल एंगल्स बनते हैं यहाँ पे? एक ये पॉसिबल एंगल हो सकता है और दूसरा ये पॉसिबल एंगल हो सकता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल आता है? इट्स गोइंग टू बी पाई माइनस pi/3. और थर्ड में क्या हो जाएगा? पाई प्लस pi/3. So you get two more possible answers. One is 2 pi/3 and the other is 4 pi/3. So you have 4 possible answers for this equation. ये आपके पास 4 solutions आपने लिख दिए. 2 exact आ रहे हैं, 2 decimals में आ रहे हैं. These are your final answers. Okay, let's move on. A curve has this equation. We first need to sketch this curve. उसने आपको एक इस तरह से ग्राफ बना दिया, उस पर मार्क कर दिए पॉइंट्स. Now the easiest way of doing this, इसमें ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है कि आप बस इसको कैलकुलेटर में डालें और डायरेक्टली कर लें. अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का आइडिया अच्छा है तो उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है. बट इफ़ यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट टू मच, आप क्या करें? कैलकुलेटर में जाके टेबल फंक्शन में जाएं. मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड, राइट. ये रेडियन के अंदर एंगल्स हैं, रेडियन में होना चाहिए. देन आई गो टू द टेबल फंक्शन. दिस इज पुट दैट फंक्शन इन दिस टेबल फंक्शन. 2 + 3 into sine of x/2, right? 1/2 times x, that's x/2. or you can just write it like that as well, 1/2x. ये आपके पास पूरा फंक्शन है, हमने इसके अंदर इनपुट कर दिया, ठीक है. अच्छा, नाउ g of x हमें एक ही फंक्शन चाहिए, इसको हम स्किप करते हैं. स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से. एंड कहाँ पे करना है? 4 पाई. अच्छा, स्टेप क्या लें? स्टेप यहाँ पे पाई नज़र आ रहे हैं. हम क्या करते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं ताकि इन केस हमें चाहिए और वैल्यूज़ हमें इस ग्राफ की नहीं समझ आए तो हम कुछ और भी प्लॉट कर लें यहाँ पे. तो हम मैं pi/2 का स्टेप ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. आप पाई का भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं अगर उससे ग्राफ की आपको समझ आ. जैसे आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, राइट. इट्स आइदर दिस और दिस, तो वही आपने शेप बनानी है. तो अगर आपको उससे समझ आ जाती है तो वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज मैं थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स ले रहा हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल. पाई / 2 कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, ओके, लेट्स जस्ट मार्क दोज पॉइंट्स नाउ. अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? हमारा मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है 5 तक. वाई वैल्यूज़ देख लो. मिनिमम कहाँ तक जा रहे हैं? -1 तक. अच्छा, वर्टिकल एक्सिस पे उसके मुताबिक आप स्केल ले लें. मैक्सिमम हमें 5 तक जाना है, नीचे -1 तक जा सकते हैं. लेट्स मार्क दिस इज -1. तो अब उतने इंटरवल में मार्क करते हैं यहाँ पे 1 2
3, 4, 5. Let's say this is 5. That's the maximum value that we will be getting eventually. अच्छा, first value 0 पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. This is the first point. ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया. अच्छा, उसके बाद पाई ओवर 2 पे हमें क्या मिल रहा है? 4.12. तो बेसिकली 4 से थोड़ा सा ऊपर. तो यहाँ पे रैंडमली मार्क कर लें इस तरह. यहाँ पे कोई पॉइंट है एंड देन पाई पे 5. अच्छा, फिर क्या आ रहा है? दोबारा से 4.12 और फिर 2 पाई पे वी हैव 2. आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एनफ. अगर हम पाई के इंटरवल पे भी देख लें तो 3 पाई पे -1 आ रहा है. फिर नीचे जाके देखते हैं -1 और फिर क्या हो रहा है? 4 पाई पे जाके इट्स गोइंग बैक टू 2. ठीक है, these are what the points are going to look like. Now since you remember कि साइन की शेप क्या होती है, it is going to look like this. और आप बस इस तरह का ग्राफ बना देंगे यहाँ पे. This is the sine graph that you are going to get from this. ठीक हो गया, ये आपको स्केच करना था इन पार्ट. अब ट्रांसफॉर्मेशन सोच के भी कर सकते थे. अगर आपको बहुत अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये देखेंगे 2 जो है वो बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन बन रही है. एम्पलीट्यूड जो है वो 3 है और जो पीरियड है, जो उसका स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो 2 पाई होता है. 2 से डिवाइड करने की वजह से वो 4 पाई बन गया. राइट, तो पूरा एक पीरियड इसका 4 पाई है, तो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है 4 पाई के अंदर. Alright, that was the sketch. Now it says state the number of solutions of this equation for 0 to 4 pi. अच्छा, देखें उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या करवाया है? ये ग्राफ स्केच करवाया है और अब आपसे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मांग रहा है. अब क्या कौन से दो फंक्शन है इसके अंदर? एक तो ये फंक्शन है, ये तो आपने ऑलरेडी स्केच किया हुआ है ऊपर. दूसरा फंक्शन जो आपने नहीं स्केच किया हुआ वो राइट साइड पे क्या आ रहा है? 5 - 2x. तो आप क्या करें, उस ग्राफ के ऊपर 5 - 2x की लाइन बना लें और देख लें कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है. 5 - 2x, ये लाइन हम बना लेते हैं उसके ऊपर. 5 - 2x. अच्छा, क्या चाहिए इसके लिए? कोई भी 2 पॉइंट्स हैं. x की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 मिलता है इसके ऊपर. लेट्स मार्क दैट पॉइंट हियर. एक और पॉइंट ले लेते हैं. y की वैल्यू अगर हम 0 इनपुट करते हैं, इनफैक्ट ये पाई की टर्म्स में है, तो हम कोई और पॉइंट ले लें. लेट्स से 4 पाई पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है. रफली हमें पता चल जाएगा कि ऊपर है पॉइंट, नीचे है. 4 पाई अगर इसके अंदर इनपुट कर दें सो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0 पे 5 आ गया. ठीक है, मैंने इसके अंदर 0 इनपुट किया, y की वैल्यू 5 आ रही है. अगर मैं इसके अंदर 4 पाई इनपुट कर दूं, यानी कि ये वाला पॉइंट, लेट्स से इस पे वैल्यू क्या आती है? 5 - 2 into 4 पाई, दैट विल बी 8 पाई. ये बहुत वैसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, शायद वो ग्राफ पे शो नहीं कर सके हम. -20. अच्छा, बहुत नीचे जा रहे हैं. हम दरम्यान में कोई पॉइंट ले लेते हैं. फिर लेट्स ट्राई 2 पाई. 2 पाई भी क्या हो जाएगा? 4 पाई भी बहुत नीचे चला जाएगा. अच्छा, मैं पाई पे वैल्यू ले रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज बाकी पॉइंट्स तो बहुत नीचे जा रहे हैं. अच्छा, पाई पे चेक कर लेते हैं पाई पे क्या आता है. पाई पे क्या होगा? 5 - 2 पाई. राइट, अगर मैं पाई इनपुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे, तो मेरे पास क्या होता है? 5 - 2 पाई. व्हाट्स दैट वैल्यू? -1.28. अच्छा, पाई पे मुझे क्या मिल रहा है? -1.28. यानी कि ऑलरेडी पाई पे ये वैल्यू इधर चलेगी है. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए. अगर मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूं तो वह लाइन कैसे लगेगी? इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, अब ये ऑब्वियस है कि लाइन वापस ऊपर तो आनी नहीं है, तो ये एक ही पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसके बाद दोबारा से तो नहीं करेगी ऊपर आके कभी. तो कितने सोल्यूशंस हुए? पर हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन है इसका, बिकॉज देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट वी कैन सी हियर एंड दैट्स व्हाट वी राइट देयर. अच्छा, ये नहीं हो रहा किसी भी तरह. I was just trying to erase that circle that I made, but I can't do that right now. Anyway, क्योंकि आपने मल्टीपल ग्राफ्स अब बना दिए हैं, इट्स बेटर टू ऑलवेज लेबल देम. यू शुड से कि ये वाला ग्राफ जो है दिस इज 2 + 3 साइन ऑफ हाफ एक्स जो आपने फर्स्ट पार्ट में ड्रा किया था, एंड दिस अदर ग्राफ इज 5 - 2x. देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू ग्राफ्स. तो आप क्या कहेंगे? कितने सोल्यूशंस है इसके? देयर इज ओनली वन सोल्यूशन. ठीक है, दैट्स पार्ट बी. Question number 9. It says a line has equation y equals 6x minus c and a curve has this equation where c is a constant. The line is a tangent to the curve at a point P. Find the possible values of c and the corresponding coordinates of P. अच्छा,
line is a tangent to the curve at point P. Now that statement should remind you of something. Line is a tangent to the curve. What does that mean? It's a quadratic function, right? So we can use b square minus 4ac equal to 0. एक हमारे पास straight line है y equals 6x minus c, और एक हमारे पास quadratic function है y equals cx square plus 2x minus 3. सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को equate कर देते हैं b square minus 4ac यूज करने के लिए. Let's equate them first of all. That gives us 6cx squared plus 2x minus 3 equal to 6x minus c. Let's bring all terms to one side, and that gives us cx squared minus 4x minus 3 plus c equal to 0. अच्छा, अब a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, c आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, और c की जगह पे क्या आ रहा है, -3 plus c आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, b square minus 4ac should be equal to 0. Okay, let's just input values in this. -4 whole squared minus 4 into c into -3 plus c equals 0. Let's simplify this. 16 minus 4c into -3, that will be plus 12c, and then minus 4c into c, that's minus 4c squared equal to 0. Let's divide the whole equation by 4 to simplify things. 4 plus 3c minus c squared equal to 0, and that's c squared minus 3c minus 4 equal to 0. It's again a quadratic equation that we have. इसको हम solve कर सकते हैं. We can use factorization. C squared minus 4c plus c minus 4 equal to 0. We get two factors from this, c minus 4 and c plus 1. Right? Yeah. Equal to 0. C equal to 4 or c equals -1. Find the possible values of c. We have two possible values of c. हमारे पास दो possible values आ गई. अब वो कहते हैं find the corresponding coordinates of p. P क्या था? P is the point where the line is a tangent to the curve. Line, right? The line is a tangent to the curve at the point P. तो जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं essentially, अगर ये लाइन है, लाइन क्या थी, 6x minus c पॉजिटिव ग्रेडियंट, या अगर ये लाइन है और एक कर्व है, तो ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट P. नाउ द पॉइंट वेयर टू ग्राफ्स मीट ईच अदर, हाउ डू यू फाइंड दैट? जनरली we solve them simultaneously, right? c की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, एक 4 है और दूसरी हमारे पास है -1. दोनों के लिए आपको अलग अलग वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं. एक दफ़ा c इक्वल्स 4 वाला केस आपको देखना पड़ेगा, एक दफ़ा c इक्वल्स -1 वाला केस देखना पड़ेगा. दोनों केसेस के लिए आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अच्छा, अगर c की वैल्यू 4 है तो हमारे पास दो इक्वेशंस, वो क्या बनेगी, y इक्वल्स 6x minus 4, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, cx स्क्वायर था. So this is going to be y equals 4x squared plus 2x minus 3. इनको simultaneously solve करना है, इनको equate कर दें, और फिर आप देखें x की क्या वैल्यूज आती हैं. equate करके हमारे पास ऑलरेडी ये एक आ चुका हुआ है. If you want, you can also use this directly. That might save you a couple of steps. But if not, इसको दोबारा कर लें, इसको दोबारा equate करते हैं तो हमें क्या मिलता है, we get 4x squared plus 2x minus 3 equal to 6x minus 4, and that gives us 4x squared minus 4x plus 1 equals 0. इसको हम factorize कर लेते हैं. 4x squared minus 2x plus 1 equal to 0. We get two factors from this, 2x minus 1 and 2x minus 1, right? That is working. 4x squared minus 4x plus 1, yeah, so that's fine. ये तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए. So x equals 1/2. लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, तो एक ही पॉइंट आना चाहिए था, हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है, x equals 1/2. अब इससे कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकाल लें. y equals 6 into 1/2 minus 4, and that gives us 3 minus 4, which is -1. तो एक पॉसिबल पॉइंट P क्या है, 1/2 and -1. अगर C की वैल्यू 4 होती तो, अगर C की वैल्यू -1 होती तो उसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या आती. एक इक्वेशन हमारे पास होती y equals 6x minus c, 6x minus 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है, सॉरी, c की वैल्यू का -1 है, तो 6x minus -1, that becomes
6x plus 1, and the other equation other equation that's a curve is going to be minus x squared plus 2x minus 3. अगर c की वैल्यू -1 है तो ये हमारे पास सेकंड केस आ गया. अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, 6x plus 1 equals minus x squared plus 2x minus 3. If I bring all terms to left side, that gives me x squared plus 4x plus 4 equal to 0. Again, I could factorize this. X squared plus 2x plus 2x plus 4 equal to 0. And I get two factors from that. X plus 2 into x plus 2. X equals -2. And the corresponding y coordinate turns out to be 6 into -2 plus 1, which is -11. So the other possible point P could be -2 and -11. This is the second possible set of coordinates that we have for P. ठीक है, -2 and -11 ये हमें चाहिए था. यहाँ पे हमें C की वैल्यूज भी मिल गई और P के दोनों possible coordinates भी मिल गए. Okay, these are our final answers. That's what we were looking for. Let's move on to the next one, question number 10. Okay, now it says the diagram shows a cross section of 7 cylindrical pipes, each of radius. The diagram shows a cross section of 7 cylindrical pipes, each of radius 20 centimeters, held together by a thin rope which is wrapped tightly around the pipes. The centers of the 6 outer pipes are A, B, C, D, E, F. Points P and Q are situated where straight sections of the rope meet the pipe with center A. Show that angle PAQ is pi over 3 radians. Okay, now these are 7 cylindrical pipes. So basically ये cylindrical pipes हैं. आपको cross section नजर आ रहा है सामने से, तो they look like circles to you, right? Because उसका जो cross section होता है cylinder का, अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हो तो वो एक सर्कल होता है, राइट? टॉप और बॉटम आर सर्कल्स. तो ये आपको वो सर्कल्स नजर आ रहे हैं उस सिलेंडर के बस. ठीक है, अच्छा. ईच ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये सारे जो रेडियस हैं, दिस इज 20, दिस इज 20, रेडियस 20. और ये साइड पे जो है एक रोप है जो रैप की हुई है, जिनके अंदर वो पाइप्स हैं सारे. ठीक है, देयर आर आल्सो सिलेंड्रिकल पाइप्स इस रोप के अंदर जो टाइटली रैप की हुई है उसके अराउंड. The centers of the 6 pipes are given. P और Q जो हैं वो 2 points आपको नजर आ रहे हैं. Show that angle PAQ, so basically this angle, show that this angle is pi over 3 radians. Okay, now how do we think about this? One way to think about this could be कि आप देखें ये पूरा एक तरह से सर्कल कंप्लीट हो रहा है. अगर आप सिर्फ इन पार्ट्स पे फोकस करें ना, ये कर्व जो कर्व्ड पार्ट्स हैं, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व और ये कर्व, ये जो 6 कर्व्स है ना, ये एक तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है. व्हाई इज अ सर्कल कंप्लीटिंग? बिकॉज आप वापस सेम पोजीशन पे आ रहे हो, तो सेम पोजीशन पे आने के लिए पूरा सर्कल कंप्लीट होना पड़ेगा. तो पूरे सर्कल के कितने एंगल्स, क्या एंगल होता है? 2 पाई एंगल होता है पूरे सर्कल का. तो ये 6 पार्ट्स हैं, तो उसको 6 से डिवाइड कर दें, वो पाई ओवर 3 आ जाता है. Right, that's one way to think about this. It's a bit hard to explain in the working, but that could be one idea if you can explain it properly. Okay, so ये angle आपको pi over 3 आ गया. That is one possibility. Another possibility could be कि आप तो थोड़ा सा आसान होगा explain करना, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम कहें इनको ज्वाइन कर दो. सो वी हैव पॉइंट ए एंड बी, दरम्यान में जो सेंटर है आपके पास, सेंट्रल सर्कल, लेट्स कॉल दिस समथिंग एज वेल, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एक्स. तो हमारे पास, हमें ये एंगल चाहिए, राइट? हमें इतना पार्ट चाहिए. अब इसको निकालने के लिए लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड द अदर पार्ट्स. तो अगर हम ये एक इस तरह से एक ट्रायंगल बना लें, we can join all parts like this, right? A और B को अगर हम join कर दें इस तरह से, तो ये एक horizontal line बनती है. अगर ये ऊपर वाली horizontal है तो उसी के parallel होगी, और इसकी लेंथ हमें पता है कितनी है, राइट? 20 ये रेडियस है, 20 ये रेडियस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. सो दिस होल लेंथ इज 40. सिमिलरली अगर हम x और b को ज्वाइन कर दें, ये भी पूरी लेंथ कितनी बनती है? 40, बिकॉज
20 + 20 40 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम ए और एक्स को ज्वाइन कर दें, ये भी 40, ए और एफ को ज्वाइन कर दें, ये भी 40। तो ये एक तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं, राइट। ये भी 40 लेंथ है, ये भी 40 लेंथ है, ये भी 40 लेंथ है। तो जो ये एंगल है नीचे वाला, आई कुड से दिस एंगल इज π/6. Okay, so I can write it down here. I can say angle FAX, x मैंने mark कर दिया अपने diagram के ऊपर, so I can use that. That is 60 degrees, or which is the same thing as, okay, sorry, not π/6, it's π/3. 60 degrees, it's π/3. This is π/3. And this angle here, which is angle XAB, that is also π/3. ये एंगल भी π/3 हो जाएगा बिकॉज दीज आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. दिस एंगल इज ऑल्सो π/3. ठीक हो गया. अच्छा, ये दो एंगल्स π/3 हो गए. अब ये देखें जो Q पॉइंट है और ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट R में भी, ये एक तरह से टेंजेंट्स बन रही हैं लाइंस इन सर्कल्स के. ये जो QR लाइन है, इट्स अ टेंजेंट टू द टॉप टू सर्कल्स. तो अगर हम यहाँ पे रेडियस बनाएं, ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये 90 डिग्रीज के एंगल्स बनेंगे. तो इसका मतलब है जो नीचे एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. दिस एंगल इज गोइंग टू बी π/2 और ये π/2 है. तो उसी लॉजिक से जो ये वाला एंगल है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी π/2, राइट. सो द सेकेंड थिंग दैट वी कैन से इज एंगल्स PAF is π/2 and that's the same as the angle QAB. राइट, ये दोनों एंगल्स π/2 हैं. तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल बचा, ये जो ऊपर वाला एंगल है. तो वो क्या हो जाएगा? वो एंगल हम कह सकते हैं एंगल PAQ. पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? 2π. 2π में से माइनस कर दें बाकी सारे एंगल्स. 2 π/3 हैं, so 2π minus π/3 minus π/3 minus π/2 and π/2. राइट, 2 π/2 और 2 π/3 माइनस कर देंगे and that should give you the result. This is going to be π/3. राइट, ये टोटल पाई बन जाता है. ये 2 π/3 है तो 1 π/3 आपके पास बचेगा. आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें. That gives you π/3 as your result for the angle PAQ. ठीक है, that's what we were looking for in the first part. Now it says find the length of the rope. अच्छा, ये जो around the cylinders, ये rope एक रैप की हुई है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है. अच्छा, अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करें? कितने पार्ट्स में आ रही है लेंथ? देखें, कुछ स्ट्रेट पार्ट्स हैं उसके और कुछ कर्व्ड पार्ट्स हैं. फॉर इंस्टेंस ये कर्व्ड पार्ट है, ये PQ कर्व्ड पार्ट है. इस तरह से ये कर्व्ड पार्ट है, एक ये कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट है. ये सारे आपके पास कर्व्ड पार्ट्स आ रहे हैं. कितने कर्व्ड पार्ट्स हैं? देयर आर 6 कर्व्ड पार्ट्स. अच्छा, फिर कुछ स्ट्रेट पार्ट्स हैं. वन, टू, 3, 4, 5 and 6. 6 स्ट्रेट पार्ट्स हैं और 6 कर्व्ड पार्ट्स हैं. तो आपको वो एक आर्क लेंथ निकालनी है, येलो पार्ट, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर हम PQ आर्क निकाल लें, लेट्स फाइंड दैट आउट. आर्क PQ निकाल लेते हैं. वो कैसे आएगी? S equals R theta, राइट. रेडियस कितना है? 20. 20 इंटू द एंगल, एंगल कितना है? π/3. सो दैट गिव्स अस 20 π/3. दिस इज द आर्क लेंथ PQ. ठीक हो गया? एंगल π/3 था, रेडियस 20, उसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट 20 π/3. अच्छा, अब ये 6 है इस तरह की, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ. Let me just think about it. We have that part there. Don't we have 2 parts here?
Oh no, it's fine. All right, so we have 6 parts here, ठीक है. अब स्ट्रेट पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं आप देखें ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ए बी के ऑपोजिट, ए एफ के ऑपोजिट. तो जो ए बी है फॉर इंस्टेंस, ए बी, what is this length? This is 2 times the radius, right? This is 20 and this is 20. तो 40 लेंथ है ए बी. तो अगर ए बी 40 है तो ऊपर वाली जो लेंथ है क्यू से लेकर उस पॉइंट तक स्ट्रेट पार्ट जो है, अगर इसको कोई पॉइंट मार्क कर ले, हमने इसको आर कहा था, तो क्यू आर भी कितना होगा, वो भी 20 होगा. सो वी कैन से क्यू आर विच इज द सेम एज ए बी, दैट इज 40. तो स्ट्रेट पार्ट्स जो है ना उनकी लेंथ कितनी आ गई है हमारे पास, स्ट्रेट पार्ट्स की लेंथ आ रही है 40. स्ट्रेट पार्ट्स 40 हैं और जो कर्व्ड पार्ट्स हैं दे आर 20 π/3. ठीक है. अब क्या करना है, हमें टोटल लेंथ निकालनी है. इनको ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें. इट्स द सेम थिंग. टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी, उससे टोटल लेंथ क्या होगी, 6 times 40 क्योंकि 6 स्ट्रेट पार्ट्स हैं, प्लस 6 times 20 π/3 because there are 6 curved parts. And you can see what that turns out to be. 40 times 6 plus 6 into 120, that's 120/3 times pi. Okay, sorry. That is 365.66. ओके, इसको राउंड ऑफ कर लें तो हम क्या आता है 366 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर उसने एग्जैक्ट कहा होता तो पाई के टर्म्स में दे देते, उसने एग्जैक्ट नहीं कहा तो हम ये डेसिमल्स लिख देंगे. 366, दैट्स द टोटल लेंथ ऑफ दैट रूप. ओके, अच्छा, अब वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ गिविंग एन आंसर इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ √3. अब आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, उस हेक्सागन का एरिया चाहिए. अच्छा, कौन से हेक्सागन की बात हो रही है, A, B, C, D, E, F. So A, oh, that's too big. अब मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ इस हेक्सागन को. A, B, C, D, E, F. ये हेक्सागन है. अच्छा, हेक्सागन के एरिया का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रेगुलर हेक्सागन का हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इट्स ईजियर टू जस्ट थिंक ऑफ द ट्रायंगल्स. 2 ट्रायंगल्स आपको नजर आ रही है अंदर जो मैंने ब्लू में ड्रॉ की हुई हैं. इसी तरह से एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है. सो दीज आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. इट्स अ रेगुलर हेक्सागन. वी हैव 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. हर ट्रायंगल की जो लेंथ्स हैं वो 40 हैं. तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. विल फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल एंड जस्ट मल्टीप्लाई दैट बाय 6 and that will give us the area of the hexagon. Okay, let's do that. Area of one triangle. Let's say area of triangle AFX or ABX, any of the triangles that we've got. ABX, let's say. अब ये क्या ट्राइंगल है, इसकी लेंथ 40 है और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो एंगल्स क्या होते हैं π/3. हाफ AB साइन से यूज कर सकते हैं. half into 40 into 40 into sine of that angle, which is π/3. Acha, what do we get from this? 20 into 40, that is going to be 800, I think. 40 into 40 divided by 2, that's 800 times sine π/3. Sine π/3 is √3/2. अब कैलकुलेटर से निकाल के या पहले शो करेंगे कि √3/2 आता है, and then you can write this as 400 times √3. That's the area of one triangle. ठीक है, अब कैलकुलेटर से आप इसको चेक भी कर सकते हैं. I'll do that just in case there's a problem with that. Sine π/3, sorry, that is √3/2. ठीक है, वो हमने यहाँ पे इनपुट किया. This is what we get. This is the area of one triangle. तो area of hexagon क्या हो जाएगा फिर, 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको. 6 into 400 times √3 and that is equal to 2400 times √3. Okay, let's move on to the last part of this question. Before we do that, just a reminder that you can find a lot of other helpful content on my channel as well. You'll find, for example, the complete A-level math, AS and A-level math syllabus covered.
You can find detailed videos for that. You can find quick revision videos, which a lot of people find extremely helpful before their exams. You can find yearly past papers solved, many of them, and a lot of other helpful content. And I keep adding to this as well. And you can find a complete SAT math syllabus playlist here as well. You can probably find that somewhere here. Yes, you can find the complete SAT math syllabus covered as well, with a lot of difficult questions solved. So make sure that you subscribe to the channel. You'll find a lot of other helpful content here. I am starting my live courses from 1st January as well. You can stay posted about them. If you check the description, you can find the link to my Instagram and my WhatsApp. If you want any further details about that, you can get in touch with me there. All right, let's get back to this part D of this question. ये हम देखते हैं. Part D में वो कहता है find the area of the complete region enclosed by the rope. ओके, कंप्लीट रीजन इंक्लोज्ड बाय द रोप. तो ये पूरा जो रीजन है जो उस रोप के अंदर है वो हमें फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज दैट रीजन? अच्छा, उसने हेक्सागन के एरिया आपसे ऑलरेडी निकलवा लिया, राइट? सो यू ऑलरेडी हैव द एरिया ऑफ द हेक्सागन. अच्छा, हेक्सागन के एरिया जब आपके पास आ गया तो अब आपको क्या करना है? हेक्सागन के बाहर वाले जो पार्ट्स हैं उनका एरिया निकालना है. हेक्सागन के बाहर वाले पार्ट्स जो बाकी बचे हैं वो क्या हैं? लेट्स थिंक अबाउट देम नाउ. अच्छा, कुछ तो आपके पास ये स्ट्रेट पार्ट्स में रेक्टेंगल्स बन रहे हैं. फॉर इंस्टेंस यू गॉट दिस रेक्टेंगल हियर, यू हैव अनदर रेक्टेंगल हियर, यू हैव अनदर रेक्टेंगल हियर. ये 6 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे इस तरह के. एंड देन यू हैव दीज सेक्टर्स. तो इन सेक्टर्स के एरियाज निकालने में, सेक्टर्स तो वैसे ही कंबाइन होकर एक सर्कल बन जाता है. आप सर्कल के एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इन सेक्टर्स का निकाल लें. तो 6 सेक्टर्स बन रहे हैं ग्रीन वाले, जिस तरह वो पहले 6 कर्व पार्ट्स बन रहे थे और 6 स्ट्रेट पार्ट्स बन रहे थे. अब 6 रेक्टेंगल्स हैं और 6 सेक्टर्स हैं जो हेक्सागन के बाहर वाला पार्ट है. हेक्सागन के एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, ये हेक्सागन ऑलरेडी है. बाहर वाले जो पार्ट्स हैं ये 3 मैंने शो कर दिए हैं, बाकी जो 3 हैं टोटल मिला के 6 हो जाएंगे. 6 रेक्टेंगल्स एंड 6 सेक्टर्स. रेक्टेंगल्स के एरियाज क्या होंगे? एक साइड 20, दूसरी साइड 40. एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल दैट विल बी 20 टाइम्स 40 एंड दैट इज 800. ये एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया. एंड देन यू कैन फाइंड एरिया ऑफ वन सेक्टर. सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ इंटू रेडियस, रेडियस 20 है, इंटू एंगल. ग्रीन वाला पार्ट जो है इसका रेडियस 20 था, एंगल कितना था? π/3. हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है वो. ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ वन सेक्टर. ठीक है, इसमें उसने एग्जैक्ट का नहीं कहा हुआ तो हम इसको डेसिमल्स में भी कर सकते हैं. दैट्स परफेक्टली ओके. लेट्स सी व्हाट दिस इज. 400 divided by 2. 20 square is 400, right? Divided by 2 divided by 3. 200 over 3 times pi. अच्छा, ये एरिया 1 सेक्टर आ गया. तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा फिर? एक तो एरिया ऑफ हेक्सागन जो हमने पहले फाइंड किया, दैट इज 2400 टाइम्स √3. 6 रेक्टेंगल्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं? 6 into 800 और फिर 6 ये सेक्टर्स हैं, 6 into 200 over 3 times pi. And you can see what that turns out to be. Exact form में it would be 2400 √3 plus 4800 plus 400 times pi. अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें, which is actually better in this case because उसने एग्जैक्ट निकालने का नहीं कहा हुआ, तो हम इसको डेसिमल में लिखते हैं. 2400 plus 4800 plus 400 pi. That's 10,213.6. ठीक है, इसको 3 significant figures पे आप लिखें तो ये क्या बन जाता है? 10,200. That is the area of that complete region enclosed by the rope that we were looking for. ठीक हो गया. Let's move on to the last one. This was a fairly tricky one, question number 10 there.
Let's move on to this. Let's do this one now. Question number 11. It says the diagram shows the curve y equals this and the point A which lies on the curve. The tangent of the curve at A cuts the y-axis at B, and the normal to the curve at A cuts the x-axis at C. Achha. Tangent of the curve at A cuts the y-axis at B. ये B पे कट कर रहा है इसको. And the normal to the curve at A cuts the x-axis at C. ये normal जो है ये x-axis को C पे कट कर रहा है. Find the equation of the tangent AB and the equation of the normal AC. अच्छा, tangent और normal की equation निकालनी है पहले तो point A के ऊपर. Now how can we do that? लाइन्स हैं, लाइन्स के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है. पॉइंट तो ऑलरेडी है दोनों के लिए ए. ग्रेडियंट चाहिए. ग्रेडियंट कैसे आएगा? कर्व का ग्रेडियंट निकालने पहले. कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको डिफरेंशिएट करना होता है. लेट्स फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स फॉर दिस. डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स 1/3 into 6x plus 2, 1/3 minus 1, that will be minus 2/3. और फिर जो अंदर वाला पार्ट है इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा? 6, and this simplifies to 2 times 6x plus 2 power minus 2/3. अब आपको क्या चाहिए? आपको ग्रेडियंट चाहिए पॉइंट ए के ऊपर. पॉइंट ए पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1. वो इसके अंदर इनपुट कर दें. What does that give us? 2 into 6 plus 2, which is going to be 8 power minus 2/3. And you can see what that is. 2 into 8 raised to power minus 2 divided by 3. And that's giving me 1/2 or 0.5. That is the gradient of the curve at the point A. ये point A के ऊपर कर्व का ग्रेडियंट हमें मिल गया. अगर कर्व का ग्रेडियंट ये है तो टेंजेंट का क्या होगा और नॉर्मल का क्या होगा? टेंजेंट का भी वही ग्रेडियंट होगा उस पॉइंट के ऊपर. उसका ग्रेडियंट हमारे पास होगा 1/2. नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज गोइंग टू बी -2. ठीक हो गया. ये दोनों के ग्रेडियंट्स आ गए हमारे पास. पॉइंट ए क्या है? 1, 2. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 and 2. Let's write down the equation of the tangent and the normal. Y minus y1 equals m into x minus x1, right? We can use that. उसको यूज करके दोनों की इक्वेशन लिखते हैं. फर्स्ट क्या हो जाएगी? y minus 2 equals m, which is 1/2 into x minus 1. This is the equation of the tangent. Equation of the normal is y minus 2 equals -2 into x minus 1. You can leave them like this and that's perfectly okay. उसने किसी फॉर्म में आपको लिखने के लिए नहीं कहा हुआ स्पेसिफिक, तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं. दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट ए. ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. लेट्स लुक एट पार्ट 2 नाउ. पार्ट 2 में वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बी सी. अच्छा, डिस्टेंस बी सी निकालने के लिए आपको दोनों पॉइंट्स चाहिए पहले, बी और सी. बी और सी कौन से पॉइंट्स हैं? बी इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट. अच्छा, टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या करें? टेंजेंट की इक्वेशन में y की वैल्यू x की वैल्यू 0 डाल दें. y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? y minus 2 equals 1/2 into 0 minus 1, and that gives us y equals y minus 2 equals -1/2. y equals 3/2 or 1.5. अच्छा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास b. Is that possible? x y coordinate 1.5. Okay, that's not possible. This is a good thing to do actually, to check कि अच्छा जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं वो पॉसिबल भी है कि नहीं है. Okay, that is possible because this is 2. This is fine. This is 2. तो ये 2 है तो b मेरे पास 1.5 आ रहा है. तो आप देख लें. अच्छा, इसकी सेंस बनती है. यस, इसकी सेंस बनती है. b is 1.5 and that's okay. अच्छा, ठीक है. फिर क्या करना है? इसका x इंटरसेप्ट निकालना है. उसने कहा था जो पॉइंट c है दैट इज द x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल का x इंटरसेप्ट कैसे आएगा? उसमें y की वैल्यू 0 इनपुट कर दें. तो नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 0 इनपुट कर दें. एंड दैट गिव्स us 0 minus 2 equal to -2x plus 2, and that's 2x equal to 4, and then x equals 2. पॉइंट c का x कोऑर्डिनेट 2 आ गया. अगेन दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस बिकॉज a का x कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो c का 2 हो सकता है. दैट इज पॉसिबल. सो दैट मीन्स दिस इज our second point. तो point B के coordinates क्या हो गए? 0 and 1.5. और C के coordinates क्या हो गए?
2 and 0. ये पॉइंट्स बी और सी आ गए हमारे पास, ठीक है. बी सी की लेंथ चाहिए आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें. बी सी स्क्वायर इक्वल्स, और लेट्स से बी सी इक्वल्स 0 minus 2 whole squared plus 1.5 minus 0 whole squared. And just evaluate this on a calculator and see what that gives you. 2 squared plus 1.5 squared, and then square root of that, that's 5 over 2 or 2.5. The length of BC is 2.5, and that is what we were looking for in part 2. ठीक है, that was part 2. अच्छा, अब कहते हैं find the coordinates of the point of intersection E of OA and BC and determine whether E is the midpoint of OA. अच्छा, पहले तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है OA का और BC का. अच्छा, OA और BC. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए आपको OA की इक्वेशन चाहिए और BC की इक्वेशन चाहिए, दोनों की इक्वेशन चाहिए आपको. अच्छा, इक्वेशंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं. O इज़ द ओरिजिन. A पॉइंट क्या है, 1 2. एक तो OA की इक्वेशन चाहिए. BC पॉइंट, B और C पॉइंट्स क्या हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं. B वॉज 0 and 1.5 और 3 over 2 and C वॉज 2 and 0. अच्छा, एक तो हमें OA की इक्वेशन चाहिए, इसमें ग्रेडियंट निकाल लेते हैं. OA की इक्वेशन निकालने के लिए लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट फर्स्ट ऑफ ऑल. 2 minus 1 over 1 minus 2 minus 0 over 1 minus 0. ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ग्रेडियंट आ गया 2. ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, OA है राइट, तो y इंटरसेप्ट इज 0, तो हम y इक्वल्स mx प्लस c भी यूज़ कर सकते हैं. y इक्वल्स mx प्लस c एंड वी कैन से कि जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y इक्वल्स 2x, बिकॉज y इंटरसेप्ट 0 है राइट, ऑरिजिन से पास करिए तो एक ये इक्वेशन आ गई. अब BC की इक्वेशन चाहिए, BC का ग्रेडियंट निकाल लें. वो क्या हो जाएगा, 0 minus 1.5 divided by 2 minus 0. You can see what that turns out to be. 1.5 divided by 2, this will be 3 over 4, right? 1.5 divided by 2. Let me just show this to you on your calculator. कैलकुलेटर पर डालेंगे आपको 3 over 4 मिल जाएगा, 0.75 एसेंशली. और ये नेगेटिव है, सो माइनस 3 over 4. अच्छा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y minus y1 equals m into x minus x1. Let me just use that. y minus y1 equals m into x minus x1. y minus, let's use any of those points. Let's say I'm using this one, 2 0. y minus 0 equals m, which is minus 3 over 4 into x minus 2. So y equals minus 3 over 4x plus 3 over 2. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई. अब पॉइंट E जो है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. लेट्स इक्वेट बोथ ऑफ देम. 2x इक्वल्स माइनस 3 over 4x प्लस 3 over 2. इनको इक्वेट कर दिया. 2 plus 3 divided by 4, that will be 11 over 4. So we have 11 over 4x equals 3 over 2, and that is going to give us the value of x. 12 divided by 2 in, okay, I'm sorry. 6 हो जाएगा, divided by 11 हो जाएगा, right? So that's 6 over 11. x coordinate क्या आ गया, 6 over 11. अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें एक पुट कर दें अगर हम, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y इज गोइंग टू बी 2 into 6 over 11 and that is 12 over 11. So E पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 6 over 11 and 12 over 11. ये पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब उसने कहा है डिटर्मिन वेदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ OA. OA का मिड पॉइंट है कि नहीं. अब देखें, डायग्राम पे देख कर लग रहा है कि शायद ये मिड पॉइंट हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी. आप OA का मिड पॉइंट निकाल लें, वो देखें वो क्या आता है. मिड पॉइंट ऑफ OA, x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. x कोऑर्डिनेट क्या था A का, x coordinate was 1, so we have 0 plus 1 over 2
and 0 plus 2 over 2. तो मिड पॉइंट क्या आ गया 0.5 and 1. This is the midpoint. So point E जो है that's not the same as the midpoint. तो हम क्या कहेंगे E is not the midpoint. Although diagram को देख के लग रहा है because almost midpoint है. 6 over 11.5 के आसपास है लेकिन exact 0.5 नहीं है. 12 over 11 1 के आसपास है लेकिन exact 1 नहीं है. तो देखने में लग रहा है लेकिन exactly नहीं है वो. तो हम क्या कहेंगे E is not the midpoint of OA. And that was the last part of this question. Okay, I hope you found this helpful. If you did, make sure to share with others. Press the like button, subscribe to the channel because you'll find a lot of other helpful content. And over the next few months now, I'll be posting a lot more. But already on the channel, you can find the complete course covered. You can find a lot of quick revision videos for almost all A-level math topics, topical past papers solved for a number of topics, difficult questions from most papers, yearly past papers. You can find all of that in the different playlists that you'll find on the channel. I'll also be starting my live courses soon from 1st of January. They are going to be for O level, for AS level, for A2 level. If you or anyone else is interested, make sure to stay updated using my Instagram and YouTube community post. I'll be posting there whenever the registration start, or you can reach out to me on my WhatsApp as well. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.